Hello. Hello. Can you share? Yes. Yeah, I don't see your screen, but just login. Okay. I'm just sharing the screens so which we have. And now you can able to see my screen. Yes, now it's good. Okay. So I will Santosh, explain. I don't need to record the session. That's okay. I mean, Okay. Okay. No okay. problem. Hmm. Thank So I'm just saying like we are learning Agile Scrum today. So in the Agile Scrum, there are three major concept available in the Scrum models, right? So first is the roles, ceremonies, and artifacts. So roles means what is the role of the in the Scrum, and ceremonies and artifacts. Ceremonies means types of the meetings and all, and artifact means documentations. So basically, in the Agile Scrum, the three major concept available means which is based on the Agile. Yeah. Okay. So first, I was created one diagram for just explaining purpose. You then after that I will also explain you how it's working. So in the Agile Scrum, in the Scrum process, first when the any we are planning to develop any project or any product. So first you know that the software bidding means पहले जब भी bid किया जाता है और एक कोई भी फाइनलाइज होता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है सो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले किक ऑफ मीटिंग में मीटिंग बुलाया जाता है उसमें कि हाई लेवल पे मीटिंग होती है वो राइट Okay. उसमें प्रोडक्ट ऑनर सीईओ जो भी कंपनी से हैं और जो मैनेजरियल जो लेवल्स के लोग होते हैं दे आर सिटिंग एंड जस्ट डिसाइडिंग द कि ये मॉडल मतलब ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के बारे में दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्ट लेवल्स की क्या क्या है और कैसे करना है इसमें कौन कौन रहेगा ये सारी चीजें डिस्कशंस होती है इसमें राइट Sure. तो ये सबसे पहले ये तो कोई भी प्रोजेक्ट में आप भी करते होंगे भी काम तो सबसे पहले तो हाई लेवल पे डिस्कशंस होता है उनका वो मीटिंग करते हैं आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग का होता है प्रोडक्ट बैकलॉग ग्रूमिंग मीटिंग इसमें इसमें ये जो होता है मतलब जो स्टेक होल्डर होगा और प्रोडक्ट ऑनर होता है और उसका मास्टर सब दे आर सिटिंग एंड देन डिसाइडिंग द कि इसको कैसे करना है क्या करना है मतलब एक तरह से प्लान इसमें भी होता है ये जो स्मॉल लेवल टीम दे आर डिसाइडिंग द टीम एंड आल्सो हु विल बी वर्क ऑन दैट मॉड्यूल एंड व्हेन वी आर प्लान टू कंप्लीट इट ठीक है Okay. ये सब एजाइल स्क्रम का ही है मतलब अगर कोई भी आप यू विल अटेंड एनी इंटरव्यू इन द इंटरव्यू दे आर आस्किंग about the like what is the sprint planning meetings what is the product backlog grooming meeting they are just asking about the definitions मतलब कि कैसे आपके if you are say like in my they are asking most of the time which model you are following in the organizations so you can tell them like in my companies we are following the agile scrum methodology to develop our product right Okay. so in and then they will ask more question about the agile scrum so like maybe they can ask to just describe your methodology which your organization is following so you can draw one diagram and then you can explain or you can just verbally you can tell them like first when we are proposal to develop a new software then uh, first of the kickoff meeting is handling by the CEO, PO, and the means higher authority of the organizations. After that, backlog grooming meeting, and then sprint planning meeting. So in the sprint planning meeting, basically in the sprint we involve the tester means like a Scrum team and the a Scrum team means developer and tester both are joining on this meeting so the purpose of this meeting is like a sprint. I already told you sprint means like a piece of software, right? I already told you in the last class is sprint. मतलब कि अगर एक पूरा प्रोडक्ट हुआ तो एक बार में तो पूरा प्लान मतलब उनको नहीं ना कर सकते हम लोग एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जैसे कि ये फर्स्ट स्प्रिंट हमको रिलीज करना है इस डेट पे एक ड्यूरेशन दिया रहता है कि वी कैन टेक
का मतलब जैसे फेज जैसा हो गया, या कि जैसे आपका प्रोडक्ट है उसको आपने जैसे कि 10 भाग में डिवाइड कर लिया, तो एक एक यस, वैसे ऐसे कर, वही हाँ होता है हाँ मतलब वही हुआ, मतलब पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जैसे एक पूरा उसको प्रोडक्ट हो पीस गया, सॉफ्टवेयर कि प्रोडक्ट को जैसे हम, स्टेप बाय स्टेप और बिट्स एंड पीसेस में उसको करना है वन बाय वन, यस तो यस स्प्रिंट हो यस, गया। हाँ ओके। वही होता है पीस ऑफ, मतलब कि उसी को जैसे एक पूरा प्रोडक्ट हो गया, अब हम उसको शॉर्ट शॉर्ट करेंगे ना, एक अलग एक बनाएंगे उसका स्प्रिंट, एक अलग स्प्रिंट बनेगा, और हर स्प्रिंट का एक टाइमलाइन होता है कि वी कैन कंप्लीट ऑन दिस टाइमलाइन। तो वो टाइमलाइन देना पड़ता है उनको पूरा स्प्रिंट अच्छा, का। तो तो जैसे स्प्रिंट जो आप, टर्म, जो स्प्रिंट, हाँ, यस, हेलो, हेलो, ये चीज है स्प्रिंट उसको बोलते हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में, अब क्या बोल रहे थे नहीं सुन पाया। नहीं, जो स्प्रिंट है वो अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर आती है। यस यस, एजाइल ओके। मेथोडोलॉजी के अंदर में आता है स्प्रिंट। मतलब वही मतलब ना कि जैसे पहले वाटरफॉल मॉडल होता था, उसमें पूरा एक बार कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग के लिए जाता था। इसमें क्या हाँ होता हाँ है कि टुकड़ों में, मतलब स्प्रिंट का मतलब आप बोल ही सकते हो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब टुकड़ों में क्या होता है, अब जैसे पूरा एक वेबसाइट बनाना है आपको, तो एक हाँ, वेबसाइट तो बनाने के मतलब, लिए, हाँ तो वो हाँ, साइड बाय साइड आपका टेस्टिंग भी चलेगा, एक साथ सब कुछ चलता रहता है, वी डोंट यस मतलब वेट नहीं करते हैं सब कुछ खत्म होके फिर से स्टार्ट मतलब टेस्टिंग यस करने यस। के लिए। तो वही ओके। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है। स्प्रिंट प्लानिंग मतलब कि हम लोग एक स्प्रिंट का जो उसमें होता है टाइम ड्यूरेशंस, और एज वेल एज कि ये कौन टेस्टिंग करेगा, इसमें कौन डेवलपमेंट जो है, मतलब वो पूरा डिस्कशन होता है इसके अंदर में, स्प्रिंट प्लानिंग के मीटिंग के अंदर में, राइट। ओके। तो ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रहता है मीटिंग, क्योंकि दिस विल बी डिसाइड द टाइमलाइन एज वेल एज द टीम who will be responsible for the testing as well as the developing, and who will be manage all these things. So basically in the scrum team, I told you scrum team मतलब दोनों होता है, combination of developer as well as tester, राइट। तो उसको स्क्रम टीम बोलते हैं। उसमें वो पूरा हैंडल जो होता है उनके पास, स्क्रम मास्टर के पास होता है, दे कैन handle all the developer as well as the tester. So if you have something questions and all related to the product, then you can directly connect with the your scrum master. ओके ओके। ओके, सो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के बाद फिर स्टार्टिंग हो जाता है। अब स्प्रिंट बन गया, मान लो कि अब एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो ऐड टू कार्ड है, तो ये ऐड टू कार्ड एक स्प्रिंट बना। अब इस स्प्रिंट को डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होने के लिए गया, डेवलपमेंट उस स्प्रिंट का कर दिया उन्होंने, एंड देन उन्होंने साइन कर दिया टेस्टिंग के लिए कि ये टीम टेस्टिंग के लिए अब रेडी हो चुका है। सो उस केसेस में फिर देन टेस्टर विल बी स्टार्टिंग द टेस्टिंग। और पहले ही मतलब आप अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना, तो देन यू नीड टू यू हैव सम टेस्ट केसेस फॉर दिस वन, बिकॉज आपके पास तो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट आ चुका होगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो उसमें एज अ क्यूए आपको यू जस्ट नीड टू राइट द टेस्ट केसेस, ऑलरेडी लिखा होना चाहिए और उसकी क्या एक्सपेक्टेड कंडीशन होनी चाहिए। So you can just go on your test cases and execute all those test cases which you have written already according to the requirement, because रिक्वायरमेंट यूजर स्टोरी आपके पास ऑलरेडी हो, क्योंकि ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सारा चीज डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी पूरा प्लान होता है इसमें, राइट। ओके। तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि आप ऐसे टेस्ट क्या करोगे, मतलब आपका पास एक डॉक्यूमेंट पार्ट रहेगा, देन यू कैन एग्जीक्यूट योर टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द आपने जो भी फ्लो समझा है लिखा है उसके यूजर स्टोरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूजर स्टोरी आपको इसी में मिल जाएगा कि ये चीजें वी आर गोइंग टू डेवलप इन दिस स्प्रिंट, सो दिस इज द यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी का मतलब ये पूरा प्लान, प्रोडक्ट का बिजनेस नॉलेज के अलावा क्या है प्रोडक्ट करती है, इस मॉड्यूल में क्या होगा, क्या टेस्ट करना है। सो ओके। ये पूरा क्लियर इसमें हो जाएगा, देन आफ्टर डेवलपमेंट यू यू कैन स्टार्ट द टेस्टिंग ऑन दैट, राइट। ओके। अब इसी में जब ये टेस्टिंग चलता है ना, ये स्प्रिंट के दौरान, तो डेली एक स्क्रम मीटिंग होता है, ठीक है। अभी भी मे बी योर ऑर्गेनाइजेशन में होता होगा, डेली 15 मिनट का होता है, ज्यादा नहीं है, वो भी कंटिन्यूसली नहीं चलता, ये 4 से 5 स्प्रिंट के बाद नॉट रिक्वायर्ड टू एनी मीटिंग। 4-5 स्प्रिंट में ही स्टार्टिंग है, तो मान लो एक प्रोडक्ट में मान लो 20 स्प्रिंट है, 20 अगर स्प्रिंट है, तो मैक्सिमम 10 स्प्रिंट तक ये रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद तो फिर वो फ्लो आ ही जाता है।
so not अच्छा, required. उसके बाद फॉलो अप की जरूरत नहीं होती है, फिर कैसे स्टेटस अपडेट करते हैं? बेसिकली अब उनको जैसे हम लोग तो अपडेट उनको करते हैं, जीरा वगैरह पे चलते ही रहता है अपना स्टेटस वगैरह जो भी इशू रेज किए, बट कुछ कंपनियां में होता है कि ये लास्ट तक भी चलते रहता है, बट सम ऑफ द कंपनी मींस लाइक कि अब जैसे लास्ट में अब जा रहा प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश इट, so maybe after that this meeting is not required, just we are connecting and updating on the mail as well as the on the Jira, और जो भी हम लोग बग ट्रैकिंग टूल यूज करते हैं उसमें हम लोग अपडेट करते हैं कि ये स्टेटस अभी है उसका। अब जैसे कि पूरा स्प्रिंट खत्म हो गया और स्प्रिंट खत्म होने के बाद मतलब एक दो स्प्रिंट बचा हुआ है, अब उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस जस्ट डेवलपर कैन डू दैट एंड देन यू विल स्टार्ट द टेस्टिंग एंड अपडेट हाँ, योर। मतलब वो तो समझ में तब आ ही जाता ना कि यस क्या यस अगर हाँ, इस क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट में ना जो भी होता है स्टार्टिंग लेवल पे ही प्रॉब्लम आती है लोगों को समझने में, बहुत सारी चीजें उनका फ्रेमवर्क सेटअप करना या रिक्वायरमेंट में भी बहुत बार टेस्टर भी समझ नहीं पाते बहुत बार चीजें, या डेवलपर को भी नहीं पता रहता है। तो ये इनिशियल 5 to 6 स्प्रिंट इट इज रिक्वायर्ड टू मींस ऑल द मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द वन मीटिंग्स, मतलब ज्यादा नहीं होता है, 15 से 20 मिनट का मीटिंग होता है स्क्रम में, right? So in that meetings, everyone is updating about the task and also how it's going. आपने आज क्या करना है, आपको आपने कल क्या किया था, just ये discussions होता है उसमें. If you have some query, then you can connect with the Scrum Master separately, or you can raise your query here too. So ये डेली ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चंस रहता है, स्प्रिंट प्लानिंग एंड द डेली जो स्क्रम मीटिंग होता है उसमें क्या होता है, मतलब ये भी पूछते हैं क्योंकि हम लोगों से भी बहुत बार इंटरव्यू जो दिए और लेते भी, तो दे आर आस्किंग अबाउट द जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द स्क्रम व्हिच योर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग. So and then meanwhile they are asking some like what is the means जो daily scrum call होता है, so in that call what you are discussing with the team, so we are just saying like कि हमको आज क्या करना है और कल क्या किया था, वो पूरा डिस्कशंस होता है मॉर्निंग में एक बार. सो ये होता है ये इसको बोलते हैं हम लोग जो डेली स्प्रिंट मीटिंग जो बोलते हैं, डेली स्क्रम मीटिंग, राइट. उसके बाद आता है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग. स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या होता है, जैसे आपका एक स्प्रिंट फिनिश हो गया है, अब ये रिव्यू के लिए जाता है, अब आपने भी टेस्टिंग कर लिया, डेवलपर इज आल्सो फिनिश, मींस एवरीथिंग इज डन, और it is a responsible of the tester can confirm कि हाँ is it okay, everything is I tested and now we can move on the another sprint. So अब क्या होता है उस तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में वी आर असाइनिंग, ऑलरेडी हम लोगों ने सब चीज कर लिया, देन वी आर अपडेटेड ऑलरेडी टू द प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर की इट इज डन फ्रॉम आवर साइड. मतलब क्यूए का बहुत बड़ा रोल होता है, क्यूए अगर पास के बिना जा ही नहीं सकता प्रोडक्शन पे कभी भी कोई भी चीजें, और अगर और सबसे बड़ी इसीलिए बोला जाता है कि क्यूए की रिस्पांसिबिलिटी होता है कि इफ समथिंग इज फेल्ड इन प्रोडक्शन मींस क्यूए इज रिस्पांसिबल फॉर दैट. ओके. सो बट अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्क्रम मास्टर है वो उन्होंने साफ बोल के रखा है कि इफ समथिंग इज going to wrong in the production, everyone is responsible, so it's not blaming to the QA only कि वो QA को ही blame करे केवल. तो ये भी पर होता है कि ये देखो केस टू केस भी हो सकता है ना, कि अब ऐसे केस टू केस हो सकता है कि किस सिचुएशन से अगर प्रोडक्शन में फेल हुई, कुछ और भी इशू भी तो हो सकता है अदर देन QA. हाँ वो चीज अलग हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ देम लाइक कि कोई क्लाइंट ने बग रेज कर दिया या फिर क्लाइंट अब सिंपल सा है, अगर ऐड टू कार्ड में वो प्रोडक्ट को ऐड ही नहीं कर पा रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाँ, बिग. बेसिक अगर कुछ है तो ऑफ कोर्स QA ही. यस. अब वो कुछ सर्वर से रिलेटेड हो तो वो अलग चीज हो जाता है, दे कैन हैंडल द डेवऑप्स टीम, बट मोस्टली आता है ये इशू. नहीं सॉरी, कंटिन्यू करो. क्या बोल रहे हैं? मुझे ये पूछना था कि जैसे एक स्प्रिंट मान लो खत्म हो गया, तो अगर उसका QA टेस्टर ने बोला कि टेस्ट पास है, तो उस चीज को वेरीफाई या साइन ऑफ करता है, जैसे कि लीड का काम होता है कि उसको चेक करना, या बस QA का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलना कि पास हो गया है? और हाँ मैं आपको बताता हूँ. तो क्या होता है कि जैसे क्यूए ने पास कर दिया ना भाई, एजाइल में एक प्रोसेस होती है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग. अब ये स्प्रिंट पूरा डन हो गया, अब स्प्रिंट का रिव्यू करने के लिए हम लोग देते हैं. ये रिव्यू जो है वी आर मींस सिटिंग विद द टीम लीड, मींस एवरी लीड मेंबर रहते हैं वो लोग सारे,
जो प्रोजेक्ट स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ऑनर, लीड, एवरीवन इज सिटिंग, और उस समय पूरा स्प्रिंट का गो थ्रू होता है। मतलब आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, सो एक स्लाइड में एक डॉक्यूमेंट ओपन रहता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है स्क्रम मास्टर की कि जो भी रिक्वायरमेंट थी स्प्रिंट फर्स्ट की, पहला वो डन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वी आर ऑलरेडी कमिटमेंट विद द क्लाइंट की वी आर पिकिंग दिस पार्ट टू द एज अ स्प्रिंट वन। सो एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द, और क्यूए की भी ये होना चाहिए कि जैसे आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। बहुत बार मेरे से स्टार्टिंग में भी वैसे होता था कि वो डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ चीजें, डेवलपर तो सिर्फ उनको इतना नहीं फोकस करते हैं जितना टेस्टर का होता है कि आपको हर चीज को वेरीफाई करना है। टेस्टर का रहता है कि आप डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा डेवलप किया है कि कहीं पे कुछ मिस कर दिया है डेवलपर ने। सो उस केसेस में हम लोग भी मैच करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है यूजर स्टोरी है, उससे पूरा वेरीफाई करना है कि ये चीजें हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेवलपर इज सेइंग लाइक या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रहता है दूसरे मॉडल से इंटीग्रेट करने के लिए, तो उस केसेस में उसको रखते हैं कि ये इट विल बी वर्क ऑन सेकंड स्प्रिंट और इट विल बी पिक ऑन, मतलब वो थर्ड, जो भी उसके रिलेशंस के अकॉर्डिंग। तो कुछ मॉडल को ऐसा रहता है, तो वी आर जस्ट मेंशन दिस थिंग्स इन द डॉक्यूमेंट कि as per our conversation with the teams we are picking this model to the next sprint। तो वो चीजें हमको पूरा एज अ क्यूए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एज अ क्यूए का मतलब ये होता है पूरा डॉक्यूमेंटेड, पूरा प्रूफ के साथ रखना पड़ता है कि ये चीजें, ये डिस्कशन हुई है और ये चीजें हम लोगों को अभी नेक्स्ट राउंड में करना है। स्प्रिंट वन का पार्ट था बट इट इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन फॉर द स्प्रिंट सेकंड, सो वी आर जस्ट होल्डिंग दिस वन। तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में वही होता है, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग क्लाइंट को देते हैं रिव्यू करने के लिए कि ये हमारा तरफ से स्प्रिंट फर्स्ट वन हो चुका है, यू कैन चेक आवर स्प्रिंट वन आइटम जो भी स्प्रिंट वन में था, यू कैन वेरीफाई। सो इसी में हम लोग पूरा डिवाइड करते। तो ये पूछते हुए इंटरव्यू की व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। So you can tell them like in the sprint review meetings after completion of the sprint one or sprint, so we are discussing with the project manager, team lead, and the QA team lead, dev team lead. We are discussing all the points which is already shared with the client in the sprint one. Everything is completed, and is there going to be any major issues? कुछ भी ऐसा मेजर इशू तो नहीं है इसमें, और बिजनेस जो हमारे पास में यूजर स्टोरी था उसके अकॉर्डिंग सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो इस मीटिंग में हम लोग पूरा का पूरा ये सब चीजें डिसाइड होता है, और देन दे कैन फाइनलाइज कि हाँ नाउ एवरीथिंग इज ओके, वी कैन मूव ऑन द सेकंड स्प्रिंट, और वी आर जस्ट अपडेटिंग टू द क्लाइंट कि हमारा स्प्रिंट फर्स्ट हो चुका है, ये इसका स्टेटस है। इफ समथिंग इज नॉन इशू देन वी आर आल्सो मेंशन ऑन इन द शीट दिस इज द नॉन इशू एंड इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द सेकंड स्प्रिंट। तो सारा चीज बताना पड़ता है उनको, नॉन इशू भी देना रहता है अगर कुछ ऐसा है कि जो माइनर भी इश्यूज हैं। सो वी कैन पिक ऑन द, क्योंकि इसकी टाइमलाइन पूरी हो रही है और कुछ ऐसा जो ब्रेक नहीं कर रहा हमारा सिस्टम को, बट हमको पता है कि दिस इज द जस्ट लाइक यूआई, मतलब कुछ टेक्स्ट का या कुछ माइनर टाइप का इश्यूज है, सो वी कैन पिक ऑन द सेकंड स्प्रिंट। और उसके बाद फिर हम लोग स्प्रिंट रिलीज कर देते हैं उनको क्लाइंट के लिए। ओके, सो ये रहेगा। अब इसमें चीजें जो कुछ आती है कि प्रोडक्ट ऑनर है उसका क्या रोल होता है, दे आर आल्सो आस्किंग इन द इंटरव्यूज कि क्या क्या रोल रहता है। तो उसके बाद स्क्रम मास्टर का क्या रोल रहता है। सो दे आपको इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे क्या क्या है इसका रोल रहता है, जो पूरा बताने के लिए। ये आपको पूरा ये फ्लो हुआ स्क्रम का, मतलब जो स्क्रम कंपनियां फॉलो करती है ये पूरा स्टेप इसको फॉलो करता है। अब इसके अंदर मैंने बोला प्रोडक्ट ऑनर हो गए, स्क्रम मास्टर हो गए, सो दे हैव ऑन रोल। तो वो क्या क्या सबका रोल रहता है, तो इसका थ्योरेटिकली हम लोग को बता देता हूँ मैं कि पीओ का जो बेसिकली रोल रहता है कि पीओ कैन गेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर एंड एज अ डिटेल यूजर स्टोरी उनको पूरा पता होना चाहिए जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। पीओ कैन प्रायोरिटाइज द यूजर स्टोरी, वही उसको प्रायोरिटी देंगी कौन सा यूजर स्टोरी को कब करना है, ठीक है। और you can adjust your story in the sprint of if उनको अगर लगता है कि ये स्प्रिंट को अभी आगे पीछे करना है कभी, मतलब पूरा का पूरा पीओ का प्रोडक्ट ऑनर को तो पूरा ऑथोरिटी रहता है उनको।
ओके। सो वो वही एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पीओ कैन रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्क रिजल्ट ऑफ द स्क्रम टीम, और पीओ कैन डिसाइड रिलीज डेट ऑफ द स्प्रिंट, एंड देन आपको बताएं कि सब कुछ फाइनलाइज, अगर सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग ओके, देन पीओ विल बी डिसाइड कि हाँ अब इसको रिलीज कर सकते हैं स्प्रिंट को। ओके। अब इसी में होता है स्क्रम मास्टर का क्या रोल रहता है। सो मैंने बताया था स्क्रम मास्टर बेसिकली क्या होता है कि डेवलपर और क्यूए दोनों को लीड करते हैं ये, मींस दे आर हैंडलिंग द बोथ डेव एज वेल एज द क्यूए। सो scrum master is responsible to improve and measure skill of developer and tester, and I also you can say like आप बोल सकते हो कि scrum master work like a facility to provide to the members, ठीक है। और स्क्रम मास्टर हम उसको डिसीजन मेकर नहीं बोल सकते, डिसीजन मेकर वो नहीं है, वो जस्ट कनेक्ट लाइक कि वो जो डिफरेंस, वो जो डेवलपर और टेस्टर के बीच का जो रहता है हेड, मतलब उनको कम्युनिकेट करके उनको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है दे आर देन सजेस्टिंग द पॉइंट्स कि आपको क्या करना है। सो स्क्रम मास्टर को दोनों का नॉलेज अच्छा रहता है, मतलब डेवलपर्स है डेव्स का भी रहता है, उनको क्यूए का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी उनको नॉलेज रहता है। तभी स्क्रम मास्टर बेसिकली दे आर हायर फ्रॉम द मैनेजरियल टाइप का और टेक्निकल बैकग्राउंड दोनों के रहते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर क्यूए टेस्टर का रोल है, तो उसमें हम्म। ये भी स्क्रम मास्टर का क्या रोल है, पीओ का क्या रोल है, ये सब भी पूछ सकते हैं? क्योंकि वो बेसिक मेरे से तो कमेंट नहीं हुआ ना, जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर मैंने क्यूए टेस्टर के लिए अप्लाई करा हाँ हाँ। और अगर मुझसे पूछ रहे हैं स्क्रम मास्टर का रोल है और क्या है, पीओ का क्या रोल है, तो मतलब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बिकॉज दिस इज विद इन हम्म। मतलब क्यूए के साथ जो भी इंटरेक्ट करता है, आपका क्यूए के साथ और भी जो भी टीम है उन सब के लिए भी पूछ सकते हैं। देखिए बेसिकली कब क्यों आता है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता, आप इंटरव्यू दिए, आपको कंपनी सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच मॉडल योर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग। सो ओके। पहला क्वेश्चन रहता है कि आप बोलेंगे कि माय कंपनी इज फॉलोइंग द एजाइल स्क्रम, हाँ हाँ। देन दे आर आस्किंग बिकॉज एजाइल स्क्रम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अब वो पूछेंगे कि एजाइल स्क्रम में क्या, पहले तो फ्लो बताइए, तो फ्लो अगर ये पूछा उसके बाद आपको ये डायग्राम में आप बता सकते हैं, या फिर आप वर्बली भी बताएंगे ऐसा ऐसा हमारे कंपनी में रहता है कि ये मतलब पहले स्क्रम मास्टर होते हैं, वी आर डेली स्क्रम मीटिंग होता है, पहले तो स्प्रिंट बनता है, स्प्रिंट के अंदर हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग बनता है, उसके बाद डेवलप होता है, डेवलप के बाद पैरेलली हम लोग स्प्रिंट में टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग मतलब पैरेलली करते जाते हैं, उसमें डेली स्क्रम मीटिंग होता है, देन इन दिस मीटिंग वी आर अपडेटिंग टू स्टेटस। तो अब अभी ये क्वेश्चन कैसे आया, सबसे पहला क्वेश्चन कि आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा मेथड आपकी कंपनी फॉलो करती है, और ये हाँ मोस्ट ऑफ द कंपनी आजकल एजाइल स्क्रम इसीलिए फॉलो कर रही है क्योंकि स्प्रिंट वाइज टेस्टिंग होता है। पहले क्या होता था, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल और स्पाइरल मॉडल और रेड मॉडल, बहुत सारे मॉडल जो बहुत पहले जब स्टार्टिंग में आया था तब, तो उस समय इस तरह का नहीं था, तो बाद में ये एजाइल और एजाइल आजकल मोस्ट ऑफ द 99% कंपनियां इसको ये फॉलो कर रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वालिटी भी अच्छा होता है, और मतलब प्रोडक्ट की जो बोलते हैं कि उसका आप लास्ट में आप पूरा डेवलप करके आप टेस्टिंग कराओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, मतलब उनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि फिर से टेस्टिंग भी डेवलपमेंट मतलब वो बहुत लंबा चलता है। और इसमें क्या आता है, कॉस्टिंग भी कम होता है, प्लस मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा होता है इसमें, क्योंकि स्प्रिंट वाइज जा रहा है ये। अच्छा, तो तो अगर ये मैथोलॉजी, तो जो मैंने पढ़ा मेरे हिसाब से अजाइल और स्क्रम दो चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं। जैसे कि अजाइल हो गया आपका एक मैथोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और स्क्रम हो गया स्पेसिफिक जो कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो सिर्फ अजाइल बोलना होगा या अजाइल स्क्रम बोलते हैं उसको? एजाइल स्क्रम बेसिकली मैंने आपको बोला कि जब कंपनी, तीन टाइप के, 4 टाइप के मेथड होते हैं एजाइल में। एजाइल में जो है ना, 4 तरह का होता है उसमें भी, एक होता है स्क्रम, उसके बाद एक्सट्रीम, अडेप्टिव एंड डायनेमिक, 3 टाइप्स के हम्म। होते हैं इसमें। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं ना वो करते हैं एजाइल स्क्रम, मतलब कम आजकल जो वो स्क्रम ही बोलेंगे, बेसिकली एजाइल स्क्रम आपको बोलना है। अच्छा। ओके।
मतलब जब भी आपको बोले कौन सा मेथड फॉलो करते हो तो एजाइल स्क्रम बोलना है आपको। अच्छा, ओके। क्योंकि वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि वो दो अलग चीजें हैं और हम्म। उसको कैसे रिलेट करना है, क्योंकि ओके। तो मैंने आपको बोला और कि एजाइल में जो होता है सो मेनी डिफरेंट सब मॉडल्स रहते हैं एजाइल के अंदर में भी। हाँ तो हाँ। हम लोग जो फॉलो करते हैं जैसे कि जो ये अभी फॉलो जो मार्केट में चल रहा है वो एजाइल स्क्रम होता है, ठीक है। नहीं, तो मेरा चीज था कि एजाइल अलग चीज है, एक अलग प्रोडक्ट हो गया, स्क्रम एक अलग प्रोडक्ट हो गया। हाँ तो हाँ जो मेथोलॉजी जो होती है इसको एजाइल स्क्रम ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ एक ऐसे साथ ही ही बोल, बोलते हाँ हैं। एक ही ओके साथ ओके। बोलते हैं। हम्म। ओके। और इसीलिए आजकल यूज हो रहा है ना कि ये मॉडल जो है इनएक्सपेंसिव है एंड टेक लेस टाइम, लाइक जैसे वी मॉडल और वाटरफॉल मॉडल जो होते थे ना उससे बहुत अच्छा ये है। आप आपको भी जब आप रियल टाइम में भी करेंगे आपको ये सब अभी समझ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप रियल टाइम में काम भी कर रहे हैं। तो जैसे वाटरफॉल मॉडल था या वी मॉडल था उसमें कितना ज्यादा दिक्कत आती होगी पहले, और अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब कि टाइम भी कम लगना और क्वालिटी भी अच्छा निकलेगा ना, क्योंकि आप एक स्प्रिंट आपके पास है आपको उसको टेस्ट करना है। और अभी जब पूरा का पूरा अगर 10 स्प्रिंट आपको एक साथ दे दिया जाए टेस्ट करने के लिए, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसमें आपको भी टाइम टेकिंग और जरूरी नहीं है कि आपको एक फिक्स करने के बाद आपको कितना टेस्ट करना पड़ेगा फिर से। हाँ, तो मतलब वो जैसे बेनिफिट जैसा पूछ सकते हैं कि यस क्या बेनिफिट्स क्या है एजाइल टेस्टिंग की, तो यस बताने के लिए तो यस। मैं बोल सकती हम्म। हूँ। तो तो इसमें आप जैसे अब मैं अभी अपन वही आ रहे थे कि आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन कैसे इसमें पूछेंगे हम लोग ये बात। तो जैसे ही आपने मॉडल बोला ना उसके अंदर में आप जो होगा वहां पे स्क्रम मास्टर जो होगा या फिर जो एजाइल वाला जो फॉलो करवाता है, मतलब जो अब मान लो मेरी कंपनी फॉलो करती है तो हम चाहते हैं कि आप आपसे पूछेंगे इंटरव्यू क्या क्या आपकी कंपनी एजाइल के बारे में आपको क्या पता है, किस तरह से काम करता है, कैसे होता है। तो उससे कुछ इंटरव्यूअर जो रहेंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे कैसे क्या किसका क्या रोल रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी तो रहते हैं। अगर बड़ी कंपनियां हैं तो उसमें अलग अलग चीजें रखेंगे, और छोटी कंपनियां रहती है वो लीड को ही मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर ये इन्वॉल्व रहा और खत्म करो इसको ज्यादा। ओके। तो ये और और चीज़ और थी मुझे पूछनी कि कोई कोई टूल जैसा होता है स्पेसिफिक टू अजाइल, लाइक कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। बेसिकली ये टूल होता है मैं आपको बताऊंगा जीरा में होता है, ठीक है। ओके। जीरा में क्या होता है उसमें एक चार्ट बनता है, बर्न अप और बर्न डाउन। ये भी एजाइल का स्क्रम का ही पार्ट होता है। उसमें क्या होता है ना, जैसे कि आपको एक स्प्रिंट दिया था, मान लो ये 1 वीक का स्प्रिंट था, आज 22 है और 27 तक ये स्प्रिंट आपको खत्म करना था, ठीक है। हम्म। इसमें टाइम भी अच्छा ओके। दिया जाता है। अब आपको क्या हुआ, इस टाइमलाइन के ड्यूरेशन में आपने कंप्लीट नहीं किया ये वाला हम्म। स्प्रिंट। तो जीरा में एक होता है अप डाउन बर्न आउट। बहुत सारी कंपनियां वो ये भी बोर्ड होती है ना, व्हाइट बोर्ड यूज करती है। तो उसमें ओके। चार्ट बनाया जाता है कि आपकी जो इफिशियंसी है वो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ग्राफ की तरह एक ड्रॉ होता है। तो वो वहां पे आपका मेजरमेंट होता है कि इस स्प्रिंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, क्योंकि जब इतना टाइमलाइन में ये चीजें भी पेंडिंग रही, ये चीजें भी नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था। तो इस ये पूरा का पूरा एक सेटअप हो जाता है जीरा में। जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो स्क्रम मास्टर थे ना वो पूरा जीरा में, ये टास्क तो जीरा में क्रिएट होता है, बैकलॉग जो होते हैं बैकलॉग जीरा में बनाए जाते हैं। तो वो बैकलॉग जो बनता है वो बैकलॉग के अंदर में टाइम ड्यूरेशन में डाला रहता है कि इस टाइम में ये इसको खत्म करना है। तो उसमें अगर नहीं खत्म हो पाता है तो वहां पे चार्ट जो होता है ग्राफ होता है वो डाउन हो जाता है, अगर अच्छा रहा तो ग्राफ ऊपर होता है। ओके। ये पूरा ट्रैकिंग होता है आपका वर्क को, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से जब आप सर्विस बेस में काम कर रहे हो और आपको पूरा बिलिंग मैनेजमेंट जो होता है उसमें वो पूरा का पूरा ट्रैक करते हैं कि कितना एफिशिएंसी जा रहा है, कैसे क्या जा रहा है। तो वो क्योंकि वो वहां पे कमिटमेंट किया जाता है ना कि ये स्प्रिंट हम इतना टाइम में दे देंगे, मान लो एक दिन लेट चलता है तो वो बर्न डाउन चार्ट होता है ना। जैसे हमारी कंपनी तो बोर्ड पे फॉलो करती है, उन्होंने व्हाइट बोर्ड लगा के रखा है और वो चार्ट बना देते हैं कि ये इस वीक में ऐसा बहुत लो ग्राफ गया फिर अप ग्राफ गया, ये ग्राफ बनाता है ये पूरा आपकी ओके। एफिशिएंसी का।
अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, तो आप उससे पूछेंगे ना, चाहे आपको किसी का स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट के बारे में, तो वो और भी आपको जीरा उरा का, जिनको हमारे पास उसका एक्सेस नहीं रहता, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक्सेस रहता है। बट हमने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब थे तो हमने देखते थे उनका पूरा मतलब एडमिन एज एक्सेस दिया हुआ था, तो हम रिपोर्ट में जाते थे और क्लिक करते थे, तो पूरा का पूरा ग्राफ दिखता था कि इस वीक में ऐसा डाउन ग्राफ गया, इस वीक में अप गया था, इस वीक में ऐसा गया था, पूरा जीरा में पूरा आपकी दिखता है वहां पे। अच्छा, ओके। ठीक है। अब हम लोगों ने बोला था कि जो होता है एजाइल स्क्रम का 3 मेन पार्ट होता है। आपको बताया था कि रोल, सेरेमनीज एंड आर्टिफैक्ट। तो रोल तो हम आपको बता ही दिए, रोल कौन सा होता है इसमें से, स्क्रम मास्टर होता है, प्रोडक्ट ऑनर होता है और स्क्रम टीम होता है। ठीक है, 3 रोल होते हैं बेसिकली, आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर और स्क्रम टीम। स्क्रम टीम में क्या होता है, डेवलपर एज वेल एज टेस्टर दोनों ज्वाइन रहते हैं। ओके। और स्क्रम मास्टर ये टीम को हैंडल करता है, जो हेड होता है वो टीम का। अच्छा, ओके, तो ये हायरार्की जैसी हो गई है। हाँ, हायर के जैसे ही होंगे। ओके। अब आते हैं हम लोग सेरेमनीज में, 3 पार्ट मैंने बताया था। तो जो सेरेमनीज होता है उसमें कि हम लोग जो टाइप्स ऑफ मीटिंग बताया था ना, कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जाना था। तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, जैसे कि स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग हो गया, डेली स्क्रम मीटिंग हो गया, किक ऑफ मीटिंग क्या होता है। तो ये भी वो इंटरव्यूअर कभी पूछ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे मेरे से तो बहुत बार ये पूछा था स्प्रिंट रिव्यू, क्योंकि स्क्रम मीटिंग बहुत लोग जानते हैं कि ये मैं बता देगा, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या होता है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग क्या होता है। तो वो चीजें इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कभी कि इस मीटिंग में क्या होता है। मीन्स यू कैन टेल देम लाइक कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैथोलॉजी फॉलो करते हैं, उसमें ऐसा ऐसा ये फ्लो होता है। तो उसके बाद उनका क्वेश्चन रहेगा क्या होता है सर, कैन यू एलोबरेट, मतलब आपको डिटेल में बताने के लिए। तो हम लोग उसके बारे में आपको बताते हैं कि जैसे अब पहला मैंने बताया था कि किक ऑफ मीटिंग होता है। तो इसमें आपको बता दें कि इन दिस मीटिंग सीईओ कैन सेलेक्ट द प्रोडक्ट ओनर अंडर द गाइडेंस ऑफ द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर। तो मतलब किक ऑफ मीटिंग में पहला वही होता है। फिर दूसरा होता है प्रोडक्ट बैकलॉग ग्रूमिंग मीटिंग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग ग्रूमिंग मीटिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट ओनर कैन कलेक्ट द कस्टमर रिक्वायरमेंट एज यूजर स्टोरी। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको यूजर स्टोरी में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो बताते हैं उसको, फिर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन जो बोलते हैं ना, सेरेमनीज का मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सर। ओके संतोषी, सो यूजर स्टोरीज जो होती है वो क्यूए का काम नहीं होता लिखना ना, वो बस टेस्ट वो केसेस हाई वगैरह देखो, अब ये भी कंपनी, जैसे कंपनी में कैसे क्यूए जो मैनेजर वगैरह होते हैं, या उनको बताया जाता है कि भैया ये आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे ये मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये प्रोडक्ट ओनर का ही काम होता है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या होते हैं ना, उनको उनको बैठाया जाता है, डॉक्यूमेंट उनको बताया जाता है, फ्लो वो लिखते हैं। अब ये डिपेंड तो कंपनी भी करता है कहीं कहीं पे। हाँ, मतलब वो टीम का साइज क्या है, अगर 3-4 हाँ लोग हैं तो एक बंदे हाँ को ही सब कुछ करना पड़ता है वो, हाँ, पर 3-4 वैसे लोग। अगर लगा लो कि स्टैंडर्ड प्रोसेस तो यही है ना कि क्यूए को यूजर वो लिखने की जरूरत नहीं होती नहीं, स्टोरीज, यूजर को क्यूए को लिखने की जरूरत नहीं है, उनको यूजर और स्टोरी। क्यूए को टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। यस, तो यूजर स्टोरी के मतलब कि अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यूजर स्टोरी समझेगा क्यूए और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस बनाएगा क्यूए। ओके। क्योंकि आपके पास यूजर स्टोरी का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट का डिटेल, रिक्वायरमेंट। तो जैसे अगर एक तो मिनट, ये कॉल यूजर डिस्कनेक्ट स्टोर, हो जाएगा 1 मिनट में। यू नीड टू ज्वाइन अगेन बिकॉज 40 मिनट्स का ही है इसका, तो ये 1 मिनट में एंड हो जाएगा। यू अच्छा कैन कोई ज्वाइन बात ऑन द नहीं, सेम। तो सेम लिंक पे ही ज्वाइन कर लूंगी ना। हाँ हाँ, सेम लिंक। ओके। ओके, जस्ट 1 मिनट में। ओके, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट।